यहाँ पे है, दिस इज टॉकिंग अबाउट हाउ चीफ जस्टिस में जो फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं, इट इज क्रिएटिंग एन इशू. नाउ रीड द टोन ऑफ द क्वेश्चन. इट सेज, डू द फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस affect? First they're asking, do you think? पहला हो गया, जो frequent changes हो रहे हैं. Okay, so here the question is, the do you think जो frequent changes हो रहे हैं in the office of the chief justice, ठीक है, this affects first thing, they may talk about continuity, because you know that suppose there is one chief justice and if he leaves the office, another will come, that second person will take the enough time first to understand पिछले 1-2 महीने में क्या हो रहा था, so that they ensure the continuity. And since you also know कि हमारे judiciary वो तारीख पे तारीख things goes on, so everybody who comes has now to be updated with what are the recent cases, what are the recent that are going on in the Supreme Court. So what happens is, suppose I am there just for 50 days, 60 days, sorry, just for sake of being the chief justice, then what will happen? Instead there should be a stable tenure कि जिसके पास at least 2 years का service is left, they should be allowed to be the chief justice. ऐसा कुछ हम कर सकते हैं. Otherwise वो continuity break होगी, जिसकी वजह से credibility issues भी आएंगे. Suppose I passed a particular judgment and I retired the next day, but उसका फिर आया petition again and then we have different judges coming up and there can be some issue. तो ये हम चाह रहे हैं कि जो continuity है और credibility है, both of the things have to be maintained. Now this is with respect to judicial reforms. You have to evaluate with suggestions to ensure the institutional stability. As I mentioned, evaluate का मतलब क्या है? अगर मुझे कॉपी मिल रही है evaluate करने को, तो क्या मैं सिर्फ पॉजिटिव देख रही हूँ? नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखना है. बट ये टोन देखो यहाँ पे लिखा है. क्या आपको लगता है फ्रीक्वेंट चेंज का कोई भी पॉजिटिव हो सकता है? कुछ भी पॉजिटिव हो सकता है? No, because there is nothing positive in making the office open for continuous changes. तो ये क्वेश्चन तो नेगेटिव टोन में ही था कि it is not at all good. आपको इंश्योर करना चाहिए stability of the office. Now you need to substantiate your answers. So here only one dimension will go, though the tail word here was evaluate. ठीक है? So what we do here is, this is for example. Okay, so here if you see, you could have started this with something like Article 124 Clause 2 of the Indian Constitution provides for appointment of the Chief Justice of India. ठीक है, ये जो है हमारा is based on the collegium system. This was something बहुत ही basic जो मैं बोल रही हूँ. अभी recent अगर कोई new Chief Justice of India has taken over the office, you could have started recently this under Article 124 Clause 2 has taken up the office. तो ये एक होता है recent context based intro. अगर कोई भी recent happening है, it's very good to start from there. This will show the examiner that you know the relevance of the question why it was asked. क्योंकि मेंस में क्या होता है कि whatever has happened in the current is what they are asking in the paper. They don't go and ask very static in 15 markers. ठीक है, 10 मार्कर में आई थिंक वो ट्राइब्यूनल पूछ सकते हैं, यूपीएससी की फंक्शनिंग पूछ सकते हैं, एनएचआरसी की फंक्शनिंग पूछ सकते हैं, बट इन 15 मार्कर आप देखो मोस्टली एनालिटिकल क्वेश्चंस आर ओनली देयर. ठीक है, सो व्हाट यू कैन डू, एक ये तरीका भी है कि आप बताओ सीजीआई, बट मुझे लग रहा है कि इससे ज्यादा बेटर होगा अगर आप थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल मेंशन कर दो, टर्म लाइक कोलिजियम सिस्टम मेंशन कर दो, दैट बेसिकली हाइलाइट्स कि अच्छा ठीक है जुडिशरी की अपॉइंटमेंट हो कैसे रही है. यू कुड हैव मेंशन रिसेंटली व्हाटएवर, आप लिख दो न्यू चीफ जस्टिस का नाम हैज टेकन ओवर द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ब्रैकेट में लिख दो आर्टिकल 124 क्लॉज 2 बिकॉज वही अपॉइंटमेंट थ्रू द कोलिजियम सिस्टम, ब्रैकेट में थर्ड जजेस केसेस. तो आपने केस भी मेंशन कर दिया, आपने आर्टिकल भी मेंशन कर दिया, आपने रीसेंट सीजीआई का नाम भी मेंशन कर दिया, राइट. सो दिस मेक्स योर आंसर लुक वेरी रेलेवेंट. इट विल आल्सो शो दैट यू हैव नॉलेज अबाउट द आर्टिकल्स एज वेल एज द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स. ठीक है, दिस कुड हैव बीन वन वे. देन यू सी लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी है इफ यू वांटेड टू कोट अबाउट इट, क्योंकि जुडिशियल रिफॉर्म वाज बीन मेंशन्ड एज अ टर्म देयर, तो उससे भी शुरू कर सकते थे अगर किसी कमीशन और किसी कमिटी ने ये चीज कही हुई है तो. नाउ यू कैन सी दैट हाउ इट इज अफेक्टिंग इट, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स of this frequent changes जो ऑफिस में हो रहे हैं. ठीक है, this was not a part, this question has not talked about that should we reform only the appointment. ठीक है, इट इज टॉकिंग अबाउट कैसे कंटिन्यूटी और क्रेडिबिलिटी को मेंशन कर सकते हैं. अगर अपॉइंटमेंट की बात होती, वी कुड हैव वेंट विद एनजेएसी का आर्गुमेंट एज वेल, दैट वी कुड हैव शोन कि हाउ वी नीड टू मेक इट मोर इंक्लूसिव टू इंश्योर दैट अलोंग विद सेपरेशन ऑफ पावर देयर एग्जिस्ट अ चेक्स एंड बैलेंसेस आल्सो एट द सेम टाइम. सो हियर व्हाट इज बीन सेड, सी लाइक शॉर्ट टेन्योर्स जो है, जैसे मैंने बात की, समबडी विद लेस देन इतना, देयर जो वो चाह रहे हैं उनका एजेंडा है. सपोज आई एम बीन गिवन यू की 10 क्लासेस में जाके मैं आपको बताऊं, और एक है कि मुझे एक साल के लिए आपका फाउंडेशन बैच लेने को बोल दिया जाए. दे आर टू डिफरेंट थिंग, राइट. अगर फाउंडेशन बैच मुझे पता है कि मुझे 10 मंथ्स का लेना है, आई विल हैव एंटायर एजेंडा कि व्हेन आई एम गोइंग टू टीच दिस टॉपिक, मैं कब आपको प्रीलिम्स के बारे में बताऊंगी, कब आपको मेंस के बारे में बताऊंगी. बट हियर व्हेन आई एम एंड आई हैव जस्ट 3 क्वेश्चंस टू डिस्कस, आई विल ट्राई कि इसमें ही जल्दी जल्दी मैं जितनी चीजें बता पाऊं आपको बता दूं. ठीक है, तो बट इट इज व्हाट इट इज इन माय हैंड, व्हाट आई हैव टू स्पीक. बट डू यू रियली थिंक कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें रेड टेपिज्म नहीं है?
बहुत ज्यादा है. If even if they have a vision, it will take so many months to get it into picture. तो ये जो CGI बहुत कम टाइम के लिए आते हैं, एक तो इनका एजेंडा अगर लॉन्ग टर्म भी होगा, that won't yield result because they have not been given that much tenure to showcase all of that. ठीक है, maybe फिर next CGI आया and maybe they think that this does not align with their vision, they'll negate it completely, they'll go ahead with something else. So don't you think this is creating some kind of discontinuity? So here it is mentioned and examples have also been given, like see just UU Lalit, इनका क्या है 74 day का tenure रहा है, मतलब 2 months से थोड़ा ज्यादा. ठीक है, तो he has just been there for that much period of time. अब इतने में आप समझो कि क्या ही changes कोई कर सकता है. Instead, if somebody with 1 or 1.5 year tenure can actually do some good like work if they are there. Second thing, this will also disrupt the continuity because as we said कि I have a different vision, a new CGI will have a different vision. Here also you can see some examples have been there. ठीक है, like somebody is talking about, एक बहुत ही ज्यादा डिबेट चला था कि सुप्रीम कोर्ट इज सिचुएटेड इन दिल्ली, वी शुड हैव रीजनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट सो दैट एवरी द पीपल फ्रॉम साउथ शुड नॉट बी कमिंग हियर टू दिल्ली फॉर द केसेस, दे शुड हैव एन ऑफिस देयर एज वेल. ठीक है, तो ये डिबेट आया था व्हेन जस्टिस रमन्ना वाज देयर. ठीक है, बट आफ्टर दैट ड्यूरिंग कोविड व्हेन द चीफ जस्टिस, तब वो लोग ने एआई पे देन ई कोर्ट्स पे इन पे फोकस करना शुरू किया. तब क्या हुआ, एजेंडा चेंज हो रहा है. डू यू रियली थिंक कि टॉकिंग अबाउट दिस रीजनल बेंचेस वाज यूजलेस? नहीं, it still holds a relevance. Now somebody who will come, maybe they think that it is relevant, they will again pick up that topic. तो आप देख रहे हो एक जो continuity है वो नहीं देखी जा रही है because everybody has a different agenda and vision. Then if you see there is something called as I told lack of long term vision. If I know I have just this class, I'll have very rapidly जो चीजें बता सकती हूँ. I'm not explaining you everything. I'm not providing you all the judgments जो कि मेरे पास proper रखा है. अगर मुझे time दिया जाए तो I will be able to do that, right? So but I'm not able to do. Why? Because मेरे पास time नहीं है. Same happens with these judges. वो long time vision लेकर आते ही नहीं है. उनका होता है कि अपने टेन्योर में मैं कितने ज्यादा केसेस सॉल्व कर दूं, मैं कितने ज्यादा बैकलॉग्स क्लियर कर दूं, कितना कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंटल जजमेंट दे दूं, बिकॉज एवरीबॉडी वांट्स टू डू दैट, राइट? सो दिस इज वेरी शॉर्ट टर्म विजन. और लॉन्ग टर्म फिर जो जुडिशियल रिफॉर्म्स है दे रिमेन स्टिल अ ड्रीम. देन हियर यू सी देयर इज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरलोड विल टेक प्लेस बिकॉज एवरी टाइम अ न्यू सीजीआई विल कम, अगेन वही ओथ का प्रोसेस करो, उनका इनॉग्रेशन का प्रोसेस करो, फिर वो जब रिटायर हो रहे हैं उसका, तो वो चीजें जो देखो दैट विल ऑल्सो क्रिएट सम काइंड ऑफ hindrances you can say, or they can start creating some administrative delays. Collegium instability, because we also there is also a question also कि आप collegium में किसको रख रहे हो. ठीक है, फिर why are not the other organs of the government part of it, why is not legislature executive part of it. तो बहुत सारी चीजें हैं that have been given. On this side we have mentioned everything for the value addition part. Data is being given, some relevant example is being given, and I tell you in polity या कोई भी सब्जेक्ट है मीन्स में, यू विल ऑलवेज हैव कंटेंट. कंटेंट की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, प्रॉब्लम आएगी एग्जाम्पल्स की, प्रॉब्लम आएगी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स की. तो जो 1 पेजेस की हम बात करते हैं कि 1 पेजर होना चाहिए, उसमें डोंट राइट एनीथिंग जो आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है. दैट शुड बी इन योर